Hello everyone. In today's session, we are going to discuss about Bretton Woods Agreement, or in other words, it's also known by Bretton Woods Conference. Though in previous lecture, we discussed about the Great Depression and its consequence on the world at large. So these are the interrelated or correlated questions. So we must understand it in a collaborated manner. So what actually is Bretton Woods Conference? As I have already told you that after the World War II and the disastrous Great Depression of 1932, the entire world came to a standstill in terms of commerce, in terms of business, in terms of trade. So after the World War II, the leaders all over the world, they felt the need to regulate the global economic order and to promote stability all around the world. So in this direction, Bretton Woods Agreement was convened. Bretton Woods actually is a place in USA. In 1944, the representatives or the delegates from across almost 44 countries participated in this conference in order to work out a collective program of action in which the economic activities at the global level would be promoted. Number one. Number second, the main agenda of this conference was to fix the exchange rate system between the countries. क्योंकि उस समय जो था बहुत बड़ी प्रॉब्लम एट द ग्लोबल लेवल पे जो थी, फॉर एग्जांपल अगर इंडियन करेंसी देखेंगे हम, इंडियन करेंसी was in the form of rupees and the USA currency was in the form of dollar. Now the question was how we can exchange these different currencies in order to work out a common framework. For that, this Bretton Woods Agreement is of a great significance, because the exchange value of different currencies was fixed. As we already know that the USA dollar, it is fixed in terms of gold, and different currencies of the different countries is fixed in terms of dollar. So Bretton Woods Agreement, it was for the first time in the history of mankind that measures were initiated to control the value of money. तो वो value of money implies that to
every country should adopt its own monetary policy to fix that kept the exchange rate of its currency within a fixed value in terms of dollar. So this was the one important thing out of this Bretton Woods conference, and the most important thing that was framed or cornered out from this conference or from this agreement, that was the creation of two most important organizations in terms of World Bank and International Monetary Fund. At that time, it was actually IBR, the International Bank for Reconstruction and Development. Later, it was known by World Bank and International Monetary Fund. So, these two important organizations or institutions at the global level was created, and they were assigned different roles. अलग अलग इनको काम दिए गए, इनके रोल दिए गए, ताकि मेन मकसद जो था, मेजर नीड जो थी उस वक्त, कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को एक बार फिर दोबारा पटरी पे लाया जाए, और इसके साथ साथ कैसे ग्लोबल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए। उस वक्त जो हंगर या मुख्तलिफ डिजीज जो थी, उन चीज़ों से कैसे लड़ा जाए एट द ग्लोबल लेवल, और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स कैसे बनाए जाए। तो ये चीज़ें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विच वाज लेटर नोन बाय वर्ल्ड बैंक, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस दो इम्पॉर्टेंट, इनको दूसरे अल्फाजों में कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF, these are the twin of Bretton Woods conference. Now look at the role of this IMF and the World Bank. The different roles were given to them in order to regulate the world economic order, in order to promote the stability in the world affairs. So first of all, look at the role of International Monetary Fund. Its main role is to foster global monetary cooperation. The major role of the IMF was to foster the global monetary cooperation, secure financial stability, promote international trade and commerce, promote employment and reduce poverty all around the world. तो IMF का जो रोल था, जो मेजर फंक्शंस इसको दिए गए, वो क्या था कि फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। तो तमाम मुल्कों के बीच में से मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट किया जाए, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर कोई बहुत सारे मुल्क जो थे अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एट दैट टाइम, they were very poor, and in order to stabilize stabilize their financial or monetary system, IMF and the World Bank, these were given the provisions to assist them in terms of money and also in terms of technical assistance, technological assistance. So these are the functions of the IMF and the World Bank. The World Bank was assigned a role to give loans, to provide loans to different countries at very low interest rates.
in order that they can develop their own countries at a faster rate. So ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, एक बार फिर हम इस चीज पे नजर डालेंगे। तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट जो था जुलाई 1944 में इस एग्रीमेंट, इस कॉन्फ्रेंस को कन्वीन किया गया था यूएसए में। तो मेजर जो मकसद था उसमें कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को एक बार फिर पटरी पे लाया जाए और कैसे दुनिया में एक बार फिर डेवलपमेंट लाई जाए, ताकि जो ऑलरेडी जो बहुत सारा डिजास्टर जंग की वजह से या ग्रेट डिप्रेशन की वजह से दुनिया ने देखा था कि वो चीज़ें दोबारा बार बार दुनिया में ना आ जाए। कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए ग्लोबल सतह पे, कैसे लोगों को भूखमरी से बचाया जाए। तो ये इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस सिलसिले में इस ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट को कन्वीन किया गया। तो इसमें मैंने जो ऑलरेडी आपको बताया कि तकरीबन 700 के करीब या 700 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें हिस्सा लिया। अगर उस वक्त हिंदुस्तान की बात की जाए, सीडी देशमुख जो उस वक्त आरबीआई का गवर्नर था, उसने हिंदुस्तान को लेकर वहाँ पे रिप्रेजेंट किया यूएसए में। तो फिर तकरीबन एक हफ्ते चली ये मीटिंग। तो वहाँ पे दो चीज़ें निकलकर सामने आए, एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सूरत में और दूसरा वर्ल्ड बैंक की सूरत में, ताकि अगर हम इनके रोल और फंक्शंस पे नज़र डालें तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये इन दोनों का जो रोल था कि जो भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज जो थी, अपार्ट फ्रॉम मैंने जो कहा वेस्टर्न कंट्रीज जिनका जो बहुत अमीर कंट्रीज थी, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी, तो इनको ये रोल दिया गया ताकि जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे ऊपर उठाया जाए। और एक चीज, दूसरी मेन चीज ये थी कि जो डिफरेंट करेंसीज है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की, तो इनको कैसे एक्सचेंज सिस्टम में लाया जाए, तो कैसे इनको एक्सचेंज किया जाए। ये एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा ये चैलेंज था दुनिया के सामने उस वक्त। तो फिर बाद में जो आज की डेट में देखते हैं कि हम आज भी कहते हैं कि ₹1 की वैल्यू जो $1 की वैल्यू जो है आज ₹70 है या ₹50 या ₹60। तो ये दुनिया की तमाम करेंसीज को फिर एक्सचेंज रेट सिस्टम को इस डॉलर के इर्द गिर्द रखा गया। तो उस वक्त ये चीज़ें फिक्स कर दी गई। तो आईएमएफ का हमने देखा कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम कहते हैं, तो इसका जो मेजर रोल था वो कि कैसे मॉनेटरी कॉपरेशन कायम की जाए, कैसे मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान स्टेबिलिटी कायम की जाए, तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हराया जाए या एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए। तो इसी वजह से जो वर्ल्ड बैंक जो था, वर्ल्ड बैंक मुख्तलिफ अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देने लगा आसान शराइत पर, ताकि वहाँ पे भी इन मुल्कों में भी ये जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं इनमें भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जोर पकड़े, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ताकि ये जो डिज़ास्टर हमने देखे हैं लोगों, ये ग्रेट डिप्रेशन की सूरत में या वर्ल्ड वार की सूरत में,
तो ये चीज़ें बार बार दुनिया को नहीं देखना पड़े। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ये जो आज हमारा ये क्वेश्चन था, आई होप दैट यू मे हैव अंडरस्टैंड इट। और नेक्स्ट सेशन में हम इस राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये जो तीसरा चैप्टर है, इसको कंप्लीट करेंगे। एंड टिल देन, गुड बाय।